Okay, so ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. So yesterday we started the chapter about network layer, and why network layer I explained. The first topic of this chapter was, or this module was, yesterday we covered, was about the characteristics of the network layer. क्या ये करता है? मिसाल के तौर पे हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जो कि एड्रेसिंग है. अगर किसी का नाम ना हो तो यू अंडरस्टैंड वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ना उससे कोई कम्युनिकेट कर सकता है. नंबर 2 हमने कहा कि ये राउटिंग करता है, राउटिंग बेस्ड अपॉन दी एड्रेस, तो ये ही इसके लिए यूज होता है. फिर हमने कहा कि ये इनकैप्सुलेशन करता है लाजमी तौर पे, और आज का हमारा टॉपिक इसी के बारे में है कि क्या चीज ये नेटवर्क लेयर ऐड करती है हमारे पेलोड के साथ. मिसाल के तौर पे अगर तो अगर हमारे पास ये एक अदद नेटवर्क हमारा टीसीपी आईपी सूट है, and here we are at the application layer. It gives, as you know, to the transport layer, and transport layer, the important point is gives its data to the network layer. So what network layer adds, and that phenomenon is called encapsulation, as you know. Like, if you don't know, you can ask me, no problem. So during encapsulation, it will add this part. If it is a IPv4 enabled device, right? And then definitely if it is adding, it has to remove as well, and that is called de-encapsulation, or you may call it decapsulation as well. Along with this, it performs the following as well, जो हमने कल पढ़ा. If you have any question, I will be happy to respond. And we talked about that it is unreliable, it is best effort, it is best effort. Number 1, he said it is connectionless. It is connectionless. And these 2 points toward the unreliable nature of the IPv4 or IP or network layer. And third thing which he talked about was the media independent. So we talked about these things in the yesterday's class. If you have any question about any of this point which is not clear to you, definitely it will be nice that I should respond if you ask me. Ji, ladies and gentlemen, do you have any question about any of this? Khayyam, do you have any question? Ubaid, do you have any question? No, sir. Okay, then I continue. So as I said that this layer is adding its own header, which means here is a protocol which is adding a header. So what the protocol have, as you know, it has 2 things. One is the syntax. Every protocol has a specific syntax, fixed syntax. And number 2, it has its own semantic, which means the grammar or order, whatever you want to say. Grammar, sorry. It has its own grammar, and it has its own semantic, meaning. It has its own meaning which is only specific to this protocol. And yesterday I told you that this header is of 20 bytes by default. It can be from, which is equivalent to 5 words, and each word is of 32 bits or 4 bytes. Each word is of 4 bytes. So if each word is of 32 bytes, it means 32 bits. You can see here that 4 times 5 is equal to 20. No problem. Okay? So that is the minimum, 20 bytes. But it can go up to 15 words. It can go up to 15 words, which is equivalent to
15 into 4, 60 bytes. But mostly we will see today that it is of only 20 bytes. And again, we will try to understand visually, सिर्फ पढ़ना नहीं है, देखना भी है कि वाकई ये 5 वर्ड्स यानी कि 20 बाइट्स हैं. बात समझ आ गई लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर. नाइस. अब हम आते हैं जी एक वर्ड इसका समझते हैं कि 20 बाइट्स में क्या है. मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूं और जहां आपको समझ ना आए वहीं आपने मुझे रोकना है. सर वर्ड में 2 बाइट्स नहीं होते. ये मंसूर इज आस्किंग. जेंटलमैन, वर्ड एक ऐसा टर्म है जिसमें आपने डिफाइन करना है. मिसाल के तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुराने टाइम में टू बाइट से एक वर्ड बनता था. फिर हमारा प्रोसेसर क्योंकि एक वक्त में 32 बाइट्स को प्रोसेस करने लगा तो हमारा वर्ड जो था वो 4 बाइट्स का हो गया. फिर आज के उसमें अगर आप देखें तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका हार्डवेयर 64 बिट का है. आपने देखा होगा आपको वो. तो हम कहते हैं हमारा वर्ड जो है वो 64 बिट का है, यानी कि 8 बाइट्स का है. तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि 2 कहना मंसूर जरूरी है. तो जिस वक्त ये इंटरनेट बन रहा था उस वक्त आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर 4 बाइट्स को एट ए टाइम प्रोसेस करता था. तो वर्ड की डेफिनेशन उस वक्त 4 वर्ड थी. मेक सेंस मंसूर? इज इट क्लियर? शाबाश. सो जेंटलमैन, आप देख रहे हो कि ये 4 बाइट्स हैं. 1 2 3 4 which is equal to you understand that which is equal to 32 bits. तो 32 bits यहाँ पे यानी वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4 एंड वर्ड नंबर 5. तो 5 वर्ड्स हो. तो हम यही देखना चाहते हैं कि पहले वर्ड में which is equal to 32 bits, second 32 bits, third and so on. या आप कह रहे हैं फर्स्ट वर्ड ऑफ 4 बाइट्स, एज यू कैन सी हियर, बाइट 1, बाइट 2, 3, 4. द सेकंड वर्ड अगेन ऑफ 4 बाइट्स एंड सो ऑन. ओके. अब सबसे पहले सिंटैक्स का क्या मतलब है? ऑर्डर. अब देखो एक ऑर्डर है. ये नहीं हो सकता कि वर्जन कभी आप यहां लिख लो कभी आप यहां लिख लो. देखिए ऑर्डर है. जैसे मैंने कल भी कहा था, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो एक ऑर्डर होता है सेंटेंस लिखने का कि यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट फर्स्ट, देन यू हैव टू राइट द वर्ब, and then you have to write the object. इसी तरह यहां पे भी एक ऑर्डर है कि सबसे पहले 4 बिट्स हैं जो कि खास मकसद रखती हैं. मकसद इज सिमेंटिक लेकिन ऑर्डर इज सिंटैक्स. कि पहले वर्जन, फिर उसके बाद इंटरनेट हेडर लेंथ, फिर उसके बाद टाइप ऑफ सर्विस भी इसको कहते हैं और डिफरेंशिएटेड सर्विसेज भी कहते हैं. आपकी मर्जी. दोनों वर्ड पुराने वक्त में पुरानी बुक्स में अगर देखोगे तो टीओएस मिलेगा, टाइप ऑफ सर्विस. और अगर नहीं उसमें देखोगे जैसे कि आपको अभी नजर आ रहा है तो डीएस, डिफरेंशिएटेड सर्विस. ओके, तो वी आर कनेक्टेड. दैट्स गुड. एंड वी आर हियर एंड वी आर रिकॉर्डिंग. नॉट बैड. ओके जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपको अब समझ आ गया कि सिंटैक्स क्या आपने पढ़ा तो बहुत होगा या मे बी आप अगली क्लास में पढ़ोगे. सिंटैक्स है, समझ नहीं आती सिंटैक्स क्या है. अब आपको समझ आ गया, विजुअलाइज कर लिया आपने कि सिंटैक्स क्या चीज होती है. अब हम बेसिकली ओके और जी, तो हमने हर एक इसको देखना है कि क्या इसका मकसद है. तो आपको ये पता है कि आईपी के 2 वर्जन हैं. एक IP4, एक IP वर्जन 4 और एक वर्जन 6. तो कैसे पता चलेगा? जब पैकेट मिसाल के तौर पे अपर लेयर से या लोअर लेयर से अगर नेटवर्क लेयर पे आएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे वर्जन 4 के मुताबिक उसको डील करना है? मैं इसको दूसरा नेट भी साथ लगा देता हूं ताकि अगर ये मसला दोबारा करे तो हम इसको चेंज कर दें. सुबह से नहीं करता, मुझे इन समझ नहीं आती कि इस वक्त क्या इसको इशू आता है.
Yes, Anam, I am connecting another network as well कि अगर ये मसला करेगा तो we'll directly shift to the other network. No problem. तो ये मैंने दूसरा नेटवर्क भी ऑन कर दिया. अगर इसने मसला किया तो हम इसको फर्दर नहीं बर्दाश्त करेंगे. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हाउ इट वर्क्स, कि इसका हर एक का अपना एक मकसद है. तो यहां से इसको आपको पता है कि वर्जन में हमें या 4 लिखना है या 6 लिखना है, और 4 बिट में हम 0 से लेके 15 तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं. तो अगर इसमें आपने 4 लिखना हो तो यू नो इन बाइनरी 4 बिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 सॉरी 0 1 0 0 1 2 4. ये 4 के इक्वल है ना, यू अंडरस्टैंड दिस, ये 4 के इक्वल है. और अगर 6 लिखना है तो इट इज इक्वल टू 0 1 1 0 इज इक्वल टू 6. तो देखने का मकसद है कि अगर यहाँ पे पहला बेल में लिखा हो 0 1 0 तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए वर्जन 4. और अगर लिखा हो 0 1 1 0 तो इसका समझ जाएगा कि ये वर्जन 4 का पैकेट नहीं है, ये डेटाग्राम IPv4 का नहीं है, IPv6 का है. लेकिन इसका मकसद है, मीनिंग है, सिमेंटिक है. इसी तरह नेक्स्ट है इंटरनेट हेडर लेंथ, और ये भी 4 बिट्स हैं. 4 बिट्स का मतलब है कि यहाँ भी 0 से 15 तक वैल्यू आ सकती है. लेकिन मिनिमम मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे ये, और याद रखो कि ये बाइट्स में नहीं है, ये बिट्स में नहीं है, ये वर्ड्स में है. ये वर्ड्स में है. यानी अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है एंड यू नो 5 इज इक्वल टू 0 1 0 1, दिस इज 5. तो अगर यहाँ पे मोस्टली यू विल फाइंड 0 1 0 1, इसका मतलब है कि इसके 5 वर्ड्स हैं, ताकि आपकी मशीन को पता चल जाए जिसने प्रोसेस करना है कि वो कितने वर्ड्स तक पढ़ेगा, और वहां पे हेडर खत्म हो जाएगा और उसके बाद पेलोड स्टार्ट हो जाएगा. ठीक हो गया, बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? शाबाश. Is it clear, Kainat, what it means by this internet header length and what is the purpose? Purpose is कि पता चले कि मैंने अभी स्टार्ट किया है कितने बाइट्स तक या कितने वर्ड्स तक मैं जाऊंगा तो मेरा हेडर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा दैट विल बी दी पेलोड. ठीक है. देन इज दी, as I said, the second byte which is of 8 bits, you may call it type of service or you may call it a differentiated service. And what the meaning? And the meaning is very, very simple. The meaning is about the quality of service. The meaning is about the quality of service. What misal ke taur pe, especially your internet is transmitting different type of traffic. It might be voice over IP, for example. It may be, for example, streaming video, for example. It may be streaming video, for example. It may be the FTP, for example. It may be the HTTP, for example. So it can be anything. So whether all of these traffic should be treated equally? I think no. Your answer is definitely no. Some of the traffic wants better quality, or you may say another option may be that a provider, a service provider, is providing services to different organizations. One of the organization, for example, this organization is paying heavily, or it is enterprise. So definitely this service provider will be providing some better services to this enterprise as compared to others. So for this case, there is an option for the differentiated, as you know, the word differentiated service, which means all of them will not get the same service. Some will get a high quality of service, high experience of service, and other will be given something low. That is the job of this field. Does it make sense, ladies and gentlemen? And this field again is divided into two: the first 6 bits and the last 2 bits.
the first 6 bits and the last 2 bits. So which means you can have 2 power 6 different classes, and accordingly the intermediate routers, the core routers on the way toward the destination will treat these packets. But let me tell you that this option is there, but if your intermediate routers, core routers does not support this feature, so then probably it is of no use. क्योंकि आपने तो ये लगा दिया कि जी मेरा वॉइस और आईपी ट्रैफिक है, इसको आपने बेहतर वो देनी है ताकि डिले कम से कम मिले या जिटर कम मिले, लेकिन उसको इस चीज को, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंच में कुछ लिख दिया और आपने पाकिस्तान पोस्ट के हवाले कर दिया, तो यहाँ तो कोई भी शख्स फ्रेंच नहीं समझता, कोई भी शख्स जर्मन नहीं समझता, तो इसका मतलब उनके लिए ये सब कुछ बेकार तस्वर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी यही मसला है कि ये फीचर तो है लेकिन तमाम रूटर्स पे क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई किस ये 6 बिट्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पे देखें बता दिया कि भाई यहाँ 4 बिट में क्या होगा, यहाँ पे 4 बिट में क्या होगा, ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे डीएससीपी में क्या होगा। 6 बिट्स मिसाल, इसके लिए क्या 6 बिट्स होंगी, इसके लिए क्या 6 बिट्स होंगी, इसके लिए क्या होंगी, इसके लिए क्या होंगी, इसलिए कोई इतना वैलिड यूज नहीं है। बात समझ आ गई? शाबाश। Is there any question? No question? Okay, then I continue. Then is the ECM, explicit congestion control. लेकिन इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कंजेशन किसे कहते हैं। कंजेशन समझ आ जाए तो फिर कंट्रोल भी समझ आ जाएगा, कंजेशन समझ आ जाए तो कंट्रोल भी समझ आ जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कंजेशन का मतलब, कंजेशन का मीनिंग इन आईपी नेटवर्क्स ये है। आपको पता है कि अगर ये मेरा राउटर है, इसको, ये इसकी इंटरफेस है, आप इस इंटरफेस के ऊपर इस राउटर को कुछ पैकेट्स दे रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं, बिट्स दे रहे हैं, फ्रेम्स दे रहे हैं, जो मर्जी कह लो। अब ये फ्रेम जब यहां पे आएगा, जब ये फ्रेम यहां पे आएगा तो लाजमी तौर पे आप सारे इंजीनियर्स हो, आपको पता है कि यहाँ पे इसके लिए बफर होगा, यहाँ पे इसके लिए ये येलो में मैंने बफर शो कर दिया, और ये भी समझते हो कि हर बफर का एक फाइनाइट साइज होता है, फाइनाइट साइज होता है, हर मेमोरी का एक फाइनाइट साइज होता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी इसमें रजिस्टर्स हैं, इसमें कैशे है, तो क्या उसका कोई फिक्स साइज नहीं है, या रैम है, क्या उसका फिक्स साइज नहीं है? हर चीज ज्यादा कम हो सकता है लेकिन साइज फिक्स है, जो भी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर मैं एक कप ले लूं या ग्लास ले लूं और उसमें पानी डालना शुरू कर दूं, चाहे ये ग्लास कितना बड़ा है डजंट मैटर, लेकिन उसकी एक खास क्वांटिटी, कैपेसिटी है, एक खास क्वांटिटी को अपने अंदर रख सकता है। जैसे मिसाल तो बॉटल आपने ली कोक की, पेप्सी की, लेट करें वो 2 लीटर की है, तो क्या आप उसमें 1.5 लीटर तो डाल सकते हो, लेकिन उसमें आप 2.5 लीटर तो क्या 2.1 लीटर भी नहीं डाल सकते। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जब आप इसमें पानी डालते जाओगे तो एक वक्त आएगा कि ये फुल हो जाएगा, और जब ये फुल हो जाएगा तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि जब और आप पानी इसमें डालेंगे तो दैट विल ओवरफ्लो, दैट विल ओवरफ्लो। इसी तरह अगर इस बफर में आप पैकेट डाल रहे हो तो ये पैकेट बढ़ता जाएगा, लाजमी तौर पे इस पैकेट से कुछ इस बफर से कुछ पैकेट निकल के दूसरे इंटरफेस से आगे भी जा रहे होंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि इस बफर से निकल के इस बफर के अंदर जा रहे होंगे और फिर इस बफर के जरिए बाहर आउटपुट पोर्ट पे जा रहे होंगे। वेरी नाइस। लेकिन अगर इनपुट यहाँ पे ज्यादा है, इनपुट यहाँ पे ज्यादा है और आउटपुट यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, ये बफर क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस ग्लास फुल हो जाएगा। और जब फुल हो जाएगा, जब और पैकेट आएंगे, पीछे से पैकेट तो आ रही हैं क्योंकि हमने तो कहा बेस्ट एफर्ट है, डालते जाओ, these packet will start dropping here, these packet will start dropping here and the scenario will be called congestion। हम कहेंगे क्या, यही क्वेश्चन कल मुझसे कायनात ने पूछा भी था कि पैकेट क्यों ड्रॉप हो गए, तो वन ऑफ द रीजन माइट बी दिस,
जिसे मैंने आपको बताया कि ये पैकेट यहाँ पे फुल हो गया है, बफर हो सकता है और इस वजह से ये पैकेट ड्रॉप हो गए, तो दैट इज कॉल्ड कंजेशन। लाजमी तौर पे ये कोई हमारे लिए खुशी की बाइस नहीं है एज ए नेटवर्क इंजीनियर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप समझते हो कि जब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से अपने पैकेट भेज रहा हूं, जैसे मैं कल की क्लास में पढ़ा रहा था, तो हमारे एक स्टूडेंट जो था वो सोमालिया से था। इसका मतलब मेरे पैकेट यहां से पाकिस्तान से बन रहे थे और सोमालिया में जाके खुल रहे थे। इसका मतलब आपको इसका मतलब एक एशिया से अफ्रीका में जा रहे थे, तो इसके दरमियान में कितनी नोड्स थी? आई डोंट नो, माइट बी 10 नोड्स, माइट बी 10 नोड्स बिटवीन मी एंड माय स्टूडेंट। सो यू अंडरस्टैंड कि अगर मिसाल के तौर पे 8 नोड्स तक तो ये पैकेट खुशी से पहुंच गया। ओके, देयर इज समथिंग चैट। ओके कायनात, अभी बताता हूं कि डीए ओके ओके पहले ये क्लियर कर दो, अगर मैं आपका जवाब ना दूं तो मुझे दोबारा पिंग करो, ठीक है? ओके, तो हमने कहा कि जी अगर ये लेट करो 8th रूटर है और यहाँ पे ये पैकेट ड्रॉप हो गया, इस जगह पे ये पैकेट ड्रॉप हो गया, अभी सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन से एक हॉप या 2 हॉप दूर था, लेकिन इसने 8 हॉप्स पे आपकी बैंडविड्थ को, रिसोर्सेज को, प्रोसेसिंग को, सबको इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद अल्टीमेट रिजल्ट 0 हो गया, तो फिर लाजमी तौर पे ये कोई इतना अच्छा हमारे लिए नहीं है। तो इस चीज को रोकने के लिए वी हैव द एक्सप्लिसिट कंजेशन कंट्रोल, ईसीएन। तो इस ईसीएन बिट्स के जरिए हम सोर्स को या डेस्टिनेशन को बता देते हैं, राउटर या सोर्स को या डेस्टिनेशन को बता देता है कि स्लो डाउन हो जाओ, मेरे पास जगह भरने वाली है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप एक ग्लास में पानी डाल रहे हैं, अगर वो 75% फुल हो गया है, तो आप अपने सोर्स को कह दें या डेस्टिनेशन को कह दें कि जी आप पैकेट्स अपनी फ्लो मुझसे कम करवाएं। आप कहेंगे डेस्टिनेशन को बताने की क्या जरूरत? भाई डेस्टिनेशन सोर्स को बताएगा कि जी क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स को स्लो डाउन कर सकता है। तो एक तरीका ये है कि आप सोर्स को डायरेक्ट कह दें, या आप डेस्टिनेशन को कह दें कि जी रास्ते में मसला है, आप अपने सोर्स को बता दो कि स्लो डाउन हो जाए। और ये हम अगली लेयर जब पढ़ेंगे, टीसीपी लेयर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक कनेक्शन बनता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, और वो कनेक्शन बनने से पहले उसमें एक विंडो साइज होता है जो डिसाइड करता है कि आप इससे ज्यादा बाइट्स नहीं भेजें। इस वजह से ये एक्सप्लिसिट कंजेशन कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कोशिश करता है कि कंजेशन ना आए। Does it make sense? शाबाश। Is it clear? Can I continue? Okay, if there is no question, then I continue. Then is the, ladies and gentlemen, पहले मैं previous question का जवाब दे दूं जो कि कायनात ने किया कि जी what is the purpose of DHCP? And I said that the function of this DHCP is that if you want to implement in your network quality of service, so option is there, facility is there. मिसाल के तौर पे you are not part of the internet, the internet, but you have your own network. May I call it a public network? Sorry, private network. वहां पे सारी machines आपके कंट्रोल में हैं। तो yes, you can implement this quality of service method कि जी मैं अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में 4 मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक भेजूंगा, सारे दरमियान में जो राउटर्स हैं, मशीन्स हैं, वो मेरी अपनी हैं। आई कैन डेफिनेटली, मिसाल तो पीटीसीएल है, पीटीसीएल पेशावर से कराची को चीज भेज रहा है, सारे राउटर्स उनके अपने हैं। इफ दे वांट टू इंप्लीमेंट दिस फीचर, यस दे कैन। डज इट मेक सेंस टू यू काइना? लेकिन पब्लिक में जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो वहां रूल्स नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए ये फीचर नहीं इंप्लीमेंट होता। जी here is, yes okay, then is the next is the total length. The next is the total length. What it means? Very simple. Total length means the length of the header plus the payload. यानी header
h plus payload from the upper layer. This total is called total length. And this, as you can see, it is of size of 16 bits. So it means you can have 2 power 16, which is 65,535 bytes. So it means this layer, network layer, has the capability to send up to 65 kilobytes. लेकिन कल भी हमने इस पे बात की थी कि नीचे की लेयर इतना बड़ा फ्रेम नहीं बना सकती. मिसाल के रूप में चाहे आपका इथरनेट है, चाहे आपका फास्ट इथरनेट है, चाहे गीगाबिट इथरनेट है, चाहे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जिगबी है, व्हाटएवर, इतना बड़ा नहीं बना सकती. इसी वजह से तो हमने कल, अगर आपको याद हो, हमने बात की थी फ्रेगमेंटेशन की, कि आपकी जो लेयर इसके नीचे है, जो कि लेयर 2 है, और लेयर 2 में भी सामने कहा था कि 2 लेयर्स हैं, एक मैक और एक एलएलसी. एलएलसी लेयर देखती है कि मैक में कौन सा हार्डवेयर है, उसके मुताबिक वो आईपी को बताती है, नेटवर्क लेयर को बताती है कि नहीं जी, आपने 65,000 का पैकेट कभी भी नहीं बनाना, आपने मिसाल के तौर पे पैकेट 1000 बाइट का बनाना है, 800 बाइट्स का बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना है. तो दैट इज दी होल स्टोरी. लेकिन डू रिमेंबर कि इसमें 20 बाइट्स जो हैं, आपने देखा कि वो हेडर के, तो ये यहाँ पे 20 लिख दिया जाएगा. अगर लेट करें कि आपका पेलोड जो है वो 100 बाइट्स का है, तो here it will be written as 120, which can easily be accommodated here. बात समझ आ गई? शाबाश. Is it clear? क्यों खामोशी है? अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हो और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हो. चलें आगे बढ़ते हैं. उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीक से जब आप लोग यहाँ पे एनी ये तो बता दें, खुफिया बात है आपकी, समझे, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही. मंसूर इज आस्किंग दैट सर फ्रेगमेंटेशन नेटवर्क लेयर में होता है. अभी बताता हूं जी, लेकिन आपसे जो आपकी खुफिया बात है वो मैं पूछ रहा था कि अगले वीक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं या एक वीक का और प्लान है? क्या प्लान करके गए हुए घरों को? आपस में तो आपको पता है ना कि आप लोगों ने क्या करना है. क्या मंडे से क्लासेस शुरू कर रहे हो या एक और वीक? क्या प्लान्स हैं चैट में? क्या जी? इंशाल्लाह. खयाम, आर यू स्टार्टिंग द न्यू सेमेस्टर फ्रॉम मंडे? ज्वाइनिंग. ओके, नाइस देन, नाइस, वेरी नाइस महरोज एंड खयाम. तो इसका मतलब है कि कमिंग वेडनेसडे को आप लोग इंशाल्लाह ताला फिजिकल क्लास में भी मेजॉरिटी अवेलेबल होगी. एनीहाउ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी. तो यहां तक हमें बात समझ आ गई. अब फ्रेगमेंटेशन आपने कहा कि कहां पे होती है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन जब कर लूं, अभी इसी पे आ रहा हूं, आई एक्सप्लेन. उसके बाद है 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन. यानी हर जो आईपी डेटाग्राम बनेगा उसको एक यूनिक नंबर चाहिए, उसको एक यूनिक नंबर चाहिए. मे बी यू मे कॉल इट सीक्वेंस नंबर चाहिए. तो दिस इज प्रोवाइडेड बाय दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड इट इज ऑफ 16 बिट लॉन्ग, एज यू कैन सी हियर, एग्जैक्ट 2 बाइट्स. आप कहेंगे जरूरत क्या है? अभी क्लियर हो जाता है. क्वेश्चन ये है, अगर जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने इस राउटर, मैं इसको रब कर लूं, मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा राउटर 1 है और ये ईथरनेट के जरिए कनेक्टेड है, ईथरनेट है यहाँ पे, लेट करें इसका मैक्सिमम बाइट जो है साइज एमटीयू का वो 1500 बाइट्स है, लेकिन ये राउटर दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है थ्रू ए सीरियल लिंक, और यहाँ पे इसको अलाउड है 576 बाइट्स. जैसे मैंने कल कहा था कि आप 1500 बाइट्स को आप एक 576 बाइट के फ्रेम में ले जा सकते हैं, जो कि आप लोगों ने कहा था नहीं, and it was true. So it means it need this router will, before putting it on this network between R1 and R2, it will break it into number of pieces, maybe 2, maybe 3, whatever, but it will keep the number below this 576 in this example. तो मिसाल के तौर पे इसने
पहले 400 बाइट्स का पहला पैकेट बना दिया, पहला फ्रेम बना दिया, अगला भी 400 का बना दिया, 800 हो गया, अगला भी 400 का बना, लाजमी नहीं एक फिक्स नंबर हो, लास्ट माइट बी 300. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, it breaks this into numerous pieces. अब कैसे पता चलेगा कि ये सारे पीसेस इसके हैं? तो एवरी वन विल कैरी आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो जितने भी पीसेस हैं, मिसाल तो पहला पीस 400 का है, दूसरा पीस भी 400 का है, तीसरा पीस जो है वो नाइस बैक. लेकिन अभी कुछ देर में आप हमें पता है कि हमारा कनेक्शन जो है वो टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट वो मिलेगा, तो डोंट गो अवे. तो आपको ये बात समझ में आई कि यहां पे मेरे पास एक ही पैकेट था, लेकिन दिस पैकेट इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 and 5 pieces, और मैं आई कॉल्ड 5 फ्रेगमेंट्स. तो किस तरह पता चलेगा कि ये इसके फ्रेगमेंट है? क्योंकि इसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो सब के ऊपर लगा दिया गया. जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई फादर है, अब उसके 5 बच्चे हैं, तो सबके नाम के आखिर में उसका नाम लग जाता है. इट इज लाइक आइडेंटिफिकेशन नंबर. बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? जैन लेट आता है बहुत. तो बात हम कर रहे थे कि दिस इज कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन नंबर. उसके बाद क्लियर हो गया कि आइडेंटिफिकेशन का क्या मकसद है. देन इज दी फ्लैग, और ये 3 बिट्स का है. पहला बिट काम के अभी तक कोई इसका यूज नहीं है. अगले 2 बिट्स जिनको मैं कैपिटल वाई और जी कह लेता हूं, इनका मकसद है. इस वाई बिट को अगर आप 0 भी कर सकते हो, आपको पता है बिट की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, तो आपका y 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आपका z 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. और अभी हम देखेंगे कि होता है कि नहीं होता, कि हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा फ्रेम, आपने राउटर साहब इस राउटर R1 को समझाना चाहते हो कि तुमने नहीं तोड़ना, तो इसको कहते हैं डोंट फ्रेगमेंट, डोंट फ्रेगमेंट. तो अगर आप 0 कर देते हो या 1, तो एक का मतलब है कि आप उसको कहते हो कि अगर जरूरत है तो तोड़ लो, नाइस. दूसरे में कहते हो कि नहीं ले जा सकते हो तो ले जाओ, वरना तोड़ने की इजाजत नहीं है. तो इसलिए वाई बिट इस्तेमाल होता है, क्योंकि बाज टाइम आप चाहते हैं कि आपके डेटा को तोड़ा ना जाए, रास्ते में उसके फ्रेगमेंट्स ना बनाए जाए. तो ठीक है, आप अपना वाई बिट जो है वो 1 कर दें, उसको सेट कर दें. कोई भी डिवाइस देखेगा कि इसको फ्रेगमेंट नहीं करना, तो आपके पैकेट को ड्रॉप कर देगा, बस ठीक है, क्योंकि ले जा तो हो सकता नहीं है. जैसे हमने पहले कहा कि अगर आप एक बस में से उतरे हैं और आपको कहा जाता है कि जी ये 55 लोग जो हैं इनको एक ही गाड़ी में ले जाना है, आगे कार खड़ी है, वो कहेगा मैं तो नहीं ले जा सकता, बस ठीक है इनको छोड़ दें, यहीं पे ड्रॉप कर दो. तो ये है इसका मकसद. अब क्वेश्चन ये है कि Z का क्या मकसद है. अब आपका सवाल ये है कि Z का क्या मकसद है. वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये पहला फ्रेगमेंट है. क्या इसके बाद और फ्रेगमेंट हैं? यानी मोर फ्रेगमेंट्स, एमएफ मोर फ्रेगमेंट्स. अगर है तो 1 कर दो, और अगर नहीं है, लेस्टर का नहीं, ये लास्ट फ्रेगमेंट है, 5th वन, तो 0 कर दो. इसका मतलब उसको पता चल जाएगा मशीन को कि जितने फ्रेगमेंट आने थे वो सारे आ गए हैं, और इस आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो डेटाग्राम है वो खत्म हो गया है, ताकि वो उसको जोड़ सके. क्योंकि अगर उसको ये नहीं पता चलता कि कब तक ही आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप समझते हो कि फिर वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब मुझे जोड़ना है. तो इसलिए हम उसको बताते हैं कि क्या और पीछे फ्रेम्स हैं, और पीछे फ्रेगमेंट्स हैं, तो नाइस. और अगर नहीं है तो बता देते हैं कि बस खत्म हो गया जी, हमने सारे फ्रेगमेंट आपको जो तोड़ा था वो दे दिए. मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर. एनी क्वेश्चन? शाबाश. Seems like no question. तो then I continue. अब क्वेश्चन ये है कि ये फ्रेगमेंट ऑफसेट का क्या काम है. इस फ्रेगमेंट ऑफसेट का क्या काम है.
बाकी चीजें आगे बहुत ईजी हैं। बस ये एक ही लाइन थोड़ी सी शायद टीचर्स भी पढ़ाते वक्त गुजार देते हैं जस्ट, और स्टूडेंट भी ख्याल नहीं करते, तो क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन अब आपको मैंने कोशिश की कि आप तक चीजें मेरी पहुंच जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा, नहीं हुआ तो आई विल बी हैप्पी टू रिकॉर्डिंग से। नाइस। तो अनम हम बात ये कर रहे थे कि अगर हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होगा तो डिलेज आएंगे, हम हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिले बर्दाश्त नहीं करना चाहती, वो समझती है कि डिले मेरे लिए मेरी एप्लीकेशन की क्वालिटी के लिए फिजिबल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो वो कह सकती है कि ठीक है, मतलब अगर वर्स्ट क्वालिटी मेरी जाती है मेरे डेस्टिनेशन पे और वो उसके किसी काम का नहीं है, बल्कि फॉर एग्जाम्पल आसान से एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपके मेडिकल इमेजेस हैं, और अगर ये मेडिकल इमेजेस टूटते हैं, जुड़ते हैं, उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा जिटर प्रोड्यूस होता है जो कि ओरिजिनल इमेज को करप्ट कर देता है, तो थोड़ी सी भी करप्शन अगर डॉक्टर को नजर आई तो वो तो उसके मुताबिक उसको डायग्नोज कर डालेगा, जो कि रियलिटी नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस किस्म की ट्रैफिक को कहें कि भाई ले जा सकते हो तो सही ले जाओ, नहीं ले जा सकते हो तो छोड़ दो। डज इट मेक सेंस टू यू अनम? यस सर। नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमारा ये फ्लैग काम करते हैं। उसके बाद है फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट कैसे काम करता है ये भी इंटरेस्टिंग है, और अभी मैं ये आपको सब कुछ दिखाऊंगा। जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अल्दो के जो 7 सेमेस्टर के लोग हैं जैसे ओसामा वगैरह, अब तो मैं 8 कह सकता हूं, वो तो मुझे नजर नहीं आ रहे, विच इज बैड। उनके लिए तो एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जूनियर्स हैं 3rd 4th सेमेस्टर के, अगर वो चाहें, मतलब उनपे कोई पाबंदी नहीं है कोई मेरी तरफ से कि नहीं यू हैव टू बी, अगर वो चाहें तो दे मे बी कनेक्टेड विद मी और दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस एकेडमी, एंड दे विल बी लर्निंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिन 7वें 8वें सेमेस्टर में पहुंच चुके हुए हैं, उनके लिए बड़ा शॉर्ट टाइम है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इन किस्म की डिलेस ना करें। तो मतलब मैंने तो कहा हुआ है कि अगर आपके घर में कोई इंटरनेट का इशू है तो लैब ओपन है, मैं फिजिकली अवेलेबल हूँ क्लास के लिए। आज भी मैं, आप देख सकते हैं, मैं अपने ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, घर से नहीं ले रहा। तो उनके लिए स्पेशल वो है कि समझ जाए। अब क्वेश्चन ये है कि और कुछ उनको समझ आ चुकी हुई है इसलिए वो यहाँ आए हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट, मुझे नहीं पता क्या वो हमारे साथ है या नहीं, वो आया कि जी, मैंने उसे पूछा पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया, कहते जी पहले पता नहीं था कि इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी अफादियत क्या है, अब पता चल गया। जब पता चल गया फिर भी फायदा नहीं उठा रहे हो, तो फिर तो आप अपनी दुश्मन खुद हो, तो इसलिए अपने साथ दुश्मनी मत करो। तो बात हम ये कर रहे थे कि फ्रेगमेंट ऑफसेट का क्या मतलब है। फ्रेगमेंट ऑफसेट जैसे अभी हमने कहा कि मिसाल के तौर पे मेरा पहला पैकेट, जैसे मैंने कहा, वो 400 बाइट्स का मैंने भेज दिया, मेरे राउटर ने तोड़ा। अगर कोई तोड़ा ही नहीं है, यानी कि मिसाल तौर पे मैंने, मेरा फ्रेगमेंट यहाँ पे आ गया कि फ्रेगमेंट करना ही नहीं है, तो फिर कोई फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं होगा, फिर कोई फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं होगा। पहले ये है क्या, पहले ये क्लियर कर दूं। ये बताता है कि अगर आपका ये पहला फ्रेगमेंट है, ये दूसरा फ्रेगमेंट है, ये तीसरा फ्रेगमेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो पहला फ्रेगमेंट कहां से स्टार्ट होगा, लाइन तौर पे 0 से स्टार्ट होगा, तो आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट भी 0 होगा। इसका मतलब ये पता चलेगा कि ये पहला बाइट आपकी तरफ आ रहा है, ये पहला फ्रेगमेंट आपकी तरफ आ रहा है, फ्रेगमेंट नंबर 1 आपकी तरफ आ रहा है। लेट करें कि इसके अंदर आपने 400 बाइट्स डाल के भेजे, आपने 400 बाइट्स डाल के भेजे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप 400 को 8 पे डिवाइड करो तो इसको, इसमें बाइट वाइज इसको काउंट किया जाता है। 8 बाइट्स का 8 बाइट्स का एक सेक्शन है, तो इसको करो तो कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब इसका आखिरी बाइट का जो एड्रेस होगा वो 50 होगा, तो हम इस सेकंड में, इसका मतलब क्या 50 से आगे आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसका ऑफसेट हो जाएगा 50। अब लेट करो कि इसका साइज जो है वो 416 बाइट्स है फॉर एग्जांपल। इसका मतलब ये है 416 डिवाइड बाय 8 करो तो 52। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से, सॉरी, पहला आपने 400 का भेजा तो 0 से स्टार्ट, तो ये 50 हो गया।
अब आपके 400 प्लस 416 यानी 816 बाइट्स पहुंच चुके हैं। इसका मतलब 817 बाइट आएगा। 8 पे डिवाइड करो इसको, तो इट विल बी 50 प्लस 52 102। इफ आई एम रॉन्ग आप चेक कर सकते हो, नंबर है कोई इसमें वो नहीं है। तो आपका ये ऑफसेट की आंसर क्या होगा 102। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको पता होता है कि 0 है तो इसका मतलब पहला है। इसमें आपको लेंथ में पता चल जाता है कि 400 बाइट्स है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कि इसके बाद 50 यानी 50 into 8 यानी कि 400 से ऑनवर्ड यानी 401 बाइट आएगा। ये आपको ऑफसेट ये बताता है। और फिर आपने इनको जोड़ना होता है ना, तो आपको पता होता है कि इसके बाद जो आएगा नंबर वो 50 होगा, वो 102 नहीं हो सकता। तो अगर ये आपको मिस ऑर्डर में मिल जाए तो यू कैन ऑर्डर देम। क्योंकि अगर आपने फ्रेगमेंट 1 ये है, फ्रेगमेंट 2 ये है, फ्रेगमेंट 3 ये है, आपने सिर्फ गलती ये की कि पहले F1 लगा दिया, फिर F3 लगा दिया, फिर F2 लगा दिया, तो ये क्या बन गया गार्बेज है, ये किसी काम का नहीं है। It is very very important that you should place them like F1, F2 and F3। तो वो ये काम, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट ये काम करता है। बात समझ आ गई? उबैदुर रहमान raised hand and I'm ready to listen you. उबैद सर ये इसको जोड़ता कौन है, ये जो अलाइन करके जी, ये एंड पेमेंट को? डिवाइस, एंड डिवाइस तोड़ता है इसको एंड कोई भी डिवाइस। राउटर रास्ते में, और जोड़ता है एंड डिवाइस डेस्टिनेशन। यस सर। मिल गया जवाब उबैद? सर एंड डिवाइस में कौन सी चीज होती है? डेफिनेटली अगर ये आपका नेटवर्क लेयर ने तोड़ा है तो नेटवर्क लेयर ही जोड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो यही ये काम दूसरे एंड पे किया जाएगा। याद रखें, बड़ी सिंपल, जो काम जिसने किया है वही लेयर दूसरे एंड पे करेगी। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? और आप कह सकते हैं कि भाई अगली ही नोड क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती, यानी मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने कहा कि ये मेरा राउटर R1 है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सीरियल केबल के साथ यहाँ R2 बनाया, तो अगर यहाँ पे इसको तोड़ा गया है तो यहाँ जोड़ क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि हो सकता है इसको बार बार तोड़ना जोड़ना करना पड़े, तो बेहतर नहीं कि आखिर में ही बस देखेंगे इस मसले को। मेक सेंस? इज इट क्लियर? यस सर। शाबाश। अब हम आते हैं बड़ी सिंपल सी टर्म्स की तरफ। बस मुश्किल वाली चीजें जो थी, समझने वाली चीजें जो थी, वो हमने समझ ली। दैट बिकम सिंपल फॉर अस नाउ। अब हमारा टॉपिक बड़ा ही सिंपल और आसान हो गया। हमारा अगला टर्म है वर्ड 3 का पहले 8 बिट्स जो हैं, एज यू कैन सी दे आर रिप्रेजेंटिंग द टाइम टू लिव। 8 बिट्स। आप मुझे बता सकते हैं, आप में से कोई भी ऐसे यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं और आप इसमें कोई इंटेलिजेंट गेस लगाना चाहें, टाइम है, टाइम टू लिव है, क्या होगा इसका यूनिट आपके ख्याल से? जैसे देखे ना, यहाँ पे मैंने लेंथ था तो मैंने कहा लेंथ का यूनिट जो है बाइट्स है, कि भाई फॉर एग्जांपल 500 बाइट्स, 600 बाइट्स, तो हर चीज का अपना एक यूनिट होता है। तो टाइम टू लिव का आप में से कौन मुझे एक इंटेलिजेंट गेस के मुताबिक बता सकेगा कि इसका यूनिट क्या है? शाबाश। आपकी आवाज कट गई थी, मुझे मेरे तक नहीं पहुंच सकी। चैट में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चैट में लिख दिया गया। एंड खयाम आप किस सेमेस्टर से हैं? जी मंसूर, लेकिन खयाम उसका मुझे फाइनल। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाइस, बट आंसर इज गुड। कि आपने ठीक कहा कि ये टाइम नहीं है, गलत इसका नाम रखा गया हुआ है। इट इज बेसिकली नंबर ऑफ हॉप्स। इस पैकेट को कितने दूर तक जाने, कितने हॉप्स दूर तक जाने की इजाजत है, कितने हॉप्स दूर तक जाने की इजाजत है। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से एक पैकेट बनाता हूं, यहां पे मैं ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये मेरा एंड नोड है, और मैं चाहता हूं कि ये पैकेट अगर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और मैं इसके अंदर 5 यहां पे 5 लिख देता हूं, इसका मतलब है कि जब यहां पहुंचेगा, जब यहां पे पहुंचेगा
हॉप 1 फॉर एग्जांपल पे पहुंचेगा तो इसका ये 5 वैल्यू जो यहां थी इसको डिक्रीमेंट करके 4 कर दिया जाएगा और इसको आगे भेज दिया जाएगा हॉप 2 की तरफ। हॉप 2 इसको डिक्रीमेंट करके 3 कर देगा और आगे भेज देगा। हॉप 3 पे आएगा तो वो इसको 2 कर देगा, अगली हॉप इसको 1 कर देगी, हॉप 4, और नेक्स्ट हॉप जो है इसको 0 करेगी। जो ही 0 करेगी इसको आगे नहीं भेजेगी, इस पैकेट को जो यहां से भेजा गया, जो यहां से पैकेट भेजा गया ई से एंड नोड से, वो यहां पे खामोशी से ड्रॉप कर दिया जाए। कुछ बात समझ आई? लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह नहीं रहे, लेकिन कम से कम उनके दिल में आ रहा है गिराने की जरूरत क्या है, गिराने की जरूरत क्या है, जाने दें, अपने अपने डेस्टिनेशन तक जाए। हो सकता है कि इसकी डेस्टिनेशन कोई हो ही ना, हो सकता है इसका जो एड्रेस है वही करप्ट हो चुका हो। तो ये पैकेट तो, इस तरह के पैकेट तो हजारों हर रोज प्रोड्यूस होंगे और वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन को, उनकी डेस्टिनेशन है ही नहीं, तो वो तो हमेशा के लिए नेटवर्क पे घूमते रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे और वो बैंडविड्थ को जाया करते जाएंगे और वो ऐड होते जाएंगे। आज अगर 1000 है, कल 2000 होंगे, अगले 3000 होंगे, एक वक्त होगा सिर्फ यही जाली पैकेट्स ही नेटवर्क पे होंगे और ट्रू ट्रैफिक के लिए जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए जरूरी है कि ऐसे ट्रैफिक्स को, ऐसे पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया जाए। तो एक तो इसका ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप इसको, इस हॉप वैल्यू को 1 कर देते हो, इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हो कि भाई मेरी यहीं पे पहुंचेगा, यानी आपके लोकल नेटवर्क के अंदर बस ये पैकेट घूम सकता है, लेकिन आपका जो एज रूटर है, जो आपका बाउंड्री रूटर है, उससे ये पैकेट नहीं जा सकता आगे। तो सिक्योरिटी वाइज भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही? यस सर। नाइस। उसके बाद है प्रोटोकॉल, 8 बिट का प्रोटोकॉल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये है कि लाजमी तौर पे अगर मिसाल के तौर पे ये पैकेट इसको, ये हेडर इसको लेयर 2 से मिला, अब इसने ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर को देना है। क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हो? इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को ये हेडर हटा के और जो पेलोड है वो ऊपर की लेयर को, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर को देना है। तो ऊपर तो आपको पता है टीसीपी भी है, आपको पता है यूडीपी भी है, आपको पता है आईसीएमपी भी है। किसको दे? क्या ख्याल है? क्या इसको पता है? इस हेडर से पता चल रहा है कि मैं किसको दूं? नहीं पता चल रहा, अभी तक तो नहीं पता चला। ये काम ये आपका प्रोटोकॉल फील्ड करता है। यहां पे ये लिखा होता है कि क्या ये एक नंबर जो कि या टीसीपी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या यूडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या आईसीएमपी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आईसीएमपी वर्जन 4 को या आईसीएमपी वर्जन 6 को। तो ये प्रोटोकॉल की फील्ड इसलिए काम आती है कि ये बताती है कि आपने ऊपर किस लेयर को देनी है, और जब उसको मिलता है तो आपको कंफर्म होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पैकेट टीसीपी ने बनाया तो टीसीपी समझेगा, यूडीपी ने भेजा तो यूडीपी समझेगा, आईसीएमपी ने भेजा तो आईसीएमपी समझेगा। आईसीएमपी का पैकेट यूडीपी नहीं समझ सकता, यूडीपी का पैकेट टीसीपी नहीं समझ सकता। तो अगर आपने आईसीएमपी का पैकेट टीसीपी के हवाले कर दिया तो इट इज रबिश, इट इज गार्बेज। तो इस चीज से बचने के लिए आप प्रोटोकॉल फील्ड में ये बता देते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल को ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये चीज हवाला करनी। फिर है, क्या मेरी यहां तक बात क्लियर हो गई? जी मंसूर, महरोज, सारा, उबैद, जैन, जकी, Yes, sir. एवरीवन क्लियर? नाइस। Yes. सर क्लियर, वेरी नाइस। अब हम आते हैं हेडर चेकसम पे। जैसे नाम से इसमें अच्छी तरीके से बताया गया कि ये चेकसम करता है, लेकिन सिर्फ इस हेडर का, डेटा का नहीं। आप कहेंगे चेकसम करता क्या है? तो बहुत ही आसान से बता दूं, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, चेकसम हमेशा इस्तेमाल होता है एरर डिटेक्शन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। तो एरर कोड अगर इस आपने जो भी बनाया, अगले जो भी हेडर लगाया, अगली रूटर पे गया, अगर ये हेडर करप्ट हो चुका है, कोई एक बिट भी आगे पीछे हो चुकी हुई है, तो ये किसी काम का नहीं।
तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हर एक हॉप के ऊपर ये चेक किया जाए, हेडर को चेक किया जाए कि हेडर में कोई खराबी तो, कोई करप्शन तो नहीं हुई। इसलिए ये 16 बिट का एरर डिटेक्शन मेथड यहां पे इंप्लीमेंटेड है। और चेकसम बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है टू कैलकुलेट, इसलिए इसको यहां पे रखा गया है। लेकिन याद रखो ये पेलोड को चेक नहीं करता, ये सिर्फ अपनी बाइट्स को 20 बाइट्स को चेक करता है कि इनमें कोई खराबी ना हो गई हो। क्योंकि मिसाल के तौर पे वर्जन गलत हो जाए, वर्जन 4 या 4 आएगा या 6 आएगा, या 4 की बजाय ये 8 बन जाए, तो 8 वर्जन तो है ही नहीं, तो कौन प्रोसेस करेगा? तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन आपके लेंथ में फर्क आ जाता है तो सब कुछ गलत हो जाएगा, आपके ऑफसेट में गलती आ जाती है, सब कुछ गलत हो जाएगा, आपके टाइम टू लिव में गलती आ जाती है, सब कुछ गया, आपके प्रोटोकॉल फील्ड में गलती आ गई, सब कुछ गया। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड चेक एट एवरी हॉप for the header which is equal to 20 into 8 160 bits। ये 160 बिट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होकर चेक करता है कि वो खराबी तो नहीं आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये आखिरी दो फील्ड सबसे आसान है। बस इसमें सोर्स अपना एड्रेस लिखता है और डेस्टिनेशन का एड्रेस है यहाँ पे अपना, यहाँ पे अपना, और यहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस लिख दिया जाता है। और ये एड्रेस क्या है? मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं आपके सामने CMD लिखूं, मैंने कल भी ये कहा था कि अगर मैं यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करूं /all, तो आपको ये एड्रेस इस वक्त मैं इसके अंदर लिख रहा हूं 192.168.43.179, और ये मुझे 2:50 पे मिला और 4:20 तक ये मेरे पास रहेगा। नाइस, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं डेटा नेटवर्क से आपके साथ कनेक्टेड हूं इस वक्त, इसलिए मेरा IP एड्रेस ये। तो मेरा कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं ये अपना IP डालूंगा इस जगह पे, और डेस्टिनेशन का डालूंगा जो भी डेस्टिनेशन है मेरी, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे कोई। तो ये है जी आपके 20 बाइट्स का मुकम्मल अहवाल। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो जल्दी से कर लें, ताकि हम, अगर इसमें हमें कोई मसला है तो हम क्लियर कर लें, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएं। सोच लें सर, एक बार गो थ्रू कर लें सर सबके ऊपर से। अच्छा जी, तो जेंटलमैन हमने कहा ये कि हम इन 20 बाइट्स को, जो कि 5 वर्ड्स के इक्वल है, इन 5 वर्ड्स में क्या क्या है, सेंटेक्स यानी ऑर्डर, और हर एक का कोई मीनिंग। तो आपने देखा कि हर चीज का एक मीनिंग था, आपने अभी जाके ये चीज देख ली है कि हर एक का अपना एक मीनिंग था। मिसाल के वर्जन का एक मीनिंग है, वो बताता है कि ये क्या ये IP वर्जन 4 है, क्या ये IP वर्जन 4 है या IP वर्जन 6 है। उसके बाद लाजमी तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कि हेडर लेंथ कितना है। तो मैंने बताया कि रूटीनली यू विल फाइंड इट, बाय डिफॉल्ट यू विल फाइंड इट इक्वल टू 5 एज इट इज 5 20 bytes is equal to 5 words, as you can see here, word 1 2 3 4 5, so that is 5, but it can be from 0 to 15, 5 से कम तो नहीं हो सकता, लेकिन 6 हो सकता है, 7, we call them options, but you will rarely find these options in your networks। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यू हैव द डिफरेंशिएटेड सर्विस फील्ड, जिनमें से 6 बिट्स इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपकी क्लास, आपके ट्रैफिक को क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, and then the classes will be redefined, will be given treatment accordingly। फिर मैंने बताया कि इसमें पहले 6 बिट जो हैं उनका मकसद, जिनको DSCP कहते हैं, जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, और ECN भी क्वालिटी के लिए है, लेकिन ये पैकेट की ड्रॉपेज, ये भी एक क्वालिटी फीचर है कि आपके पैकेट ड्रॉप ना हो, तो उससे बचने के लिए, कंजेशन को अवॉइड करने के लिए ये नोटिफिकेशन इस्तेमाल होता है। फिर मैंने कहा कि जी टोटल लेंथ ये बताता है कि हेडर का लेंथ जो कि 20 बाय डिफॉल्ट 20, और इसके अलावा कितना पे लोड इसके साथ ऐड हुआ है, तो टोटल लेंथ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप टोटल लेंथ से हेडर लेंथ निकाल दें, इंटरनेट हेडर लेंथ, तो आपके पास जो पे लोड होगा उसका लेंथ पता चल जाता है। फिर मैंने वर्ड 2 पे आया और मैंने कहा कि जी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, जो कि एक नंबर है, जो कि 16 बिट से रिप्रेजेंट होता है।
फिर हमने कहा कि इसके बाद और एक पैकेट का, एक आईपी पैकेट का एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि यूनिक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 3 बिट का फ्लैग है, जिसमें पहला बिट कोई काम अभी तक नहीं करता, रिजर्व्ड है, जबकि वाई और जी फ्लैग्स काम करते हैं। वाई फ्लैग का मतलब है कि डिफरेंशिएट, क्या मैं इसको फ्रेगमेंट करूं कि ना करूं, 0 है तो मत करो, 1 1 है तो कर दो। इस तरह Z का मतलब है क्या और फ्रेगमेंट इसके पीछे हैं, मोर फ्रेगमेंट्स हैं MF या नहीं है। अगर नहीं है तो 0 है तो 1 कर दो। फिर उसके बाद मैंने बताया फ्रेगमेंट ऑफसेट, जो कि ये बताता है कि इसका पहला बाइट जो है उसका नंबर क्या है, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ साइट, जो कि 8 बाइट, याद रखो 8 बाइट से 8 बाइट का ग्रुप में पैकेट्स जाते हैं, बाइट्स जाते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि टाइम टू लिव क्या है, ये टाइम नहीं है, ये मिली सेकंड सेकंड नहीं कहना, बल्कि बेसिकली ये टाइम टू लिव जो है ये नंबर ऑफ हॉप्स है, कि कितने हॉप्स तक ये पैकेट या ये फ्रेम जा सकता है। फिर उसके बाद है प्रोटोकॉल, जिसका मकसद ये है कि ऊपर इससे जो प्रोटोकॉल है जिसके हवाले करना है ये पेलोड, वो कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या वो टीसीपी है, यूडीपी है या आईसीएमपी है। फिर मैंने कहा कि इस हेडर में खराबी भी आ सकती है, एरर भी आ सकता है। इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए हेडर का एक मेथड इस्तेमाल किया गया जिसको कहते हैं चेकसम, जो कि एक वेरी सिंपल मेथड है टू फाइंड दी एरर। फिर मैंने बताया कि उसके बाद आप 4th वर्ड में अपना एड्रेस और 5th वर्ड में डेस्टिनेशन का 32 बिट का एड्रेस ऐड कर देते हैं। तो मैंने ब्रीफली सारी चीजों को दोबारा भी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कम ऑन प्लीज। थैंक यू सर। ओके जैन, देन ये बात अगर समझ आ गई तो हमने काफी अच्छी चीजें समझ ली। और अगली स्लाइड पे यही बताया गया कि वर्जन का क्या मतलब है, डिफरेंशिएटेड सर्विस का क्या मतलब है, चेकसम का क्या मतलब है, टाइम टू लिव का क्या मतलब है, प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, सोर्स आईपी का क्या मतलब है, डेस्टिनेशन आईपी का क्या मतलब है। तो यहाँ तो जस्ट एक स्लाइड है, मैंने आपको अच्छी खासी डिटेल में ये सारी चीजें समझा दी। अब हम आते ही हैं, इससे पहले कि हम IPv6 का पैकेट देखें जो कि 40 बाइट्स का है, मैं ये चीजें आपको दिखाना चाहता हूं जो आपने अभी 20 बाइट्स पढ़ा। और इसके लिए मैं क्या करता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मेरी ट्रैफिक आपकी तरफ जा रही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं वायरशॉक को स्टार्ट करता हूं और आपको भी अगर आप वायरशॉक स्टार्ट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और आपको नजर आ रहा है कि मेरी वाईफाई से ट्रैफिक जा रही, मेरी वाईफाई से ट्रैफिक जा रही है, मैं इस ट्रैफिक को कैप्चर करता हूं। तो मैंने इसको कहा जी कैप्चर करो, स्टार्ट कैप्चरिंग। मैं चंद पैकेट कैप्चर कर लेता हूं और फिर इसको मैं रोक देता हूं। ये जी मैंने इतनी देर में भी तकरीबन 1200 से ज्यादा पैकेट्स फ्रेम्स कैप्चर कर लिए। अब हम इसको एक एक को जरा देखते हैं। हम इस वक्त किस में हैं, हम इस वक्त आईपी लेयर पे हैं। तो देखें सबसे पहला पॉइंट, पहला वो जो क्या है, वर्जन। वर्जन में क्या लिखा हुआ है, 0100, इसका मतलब है क्या, फॉर्म। मैंने भी यही कहा था। फिर उसके बाद हेडर लेंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ड 20 बाइट्स। मेरा ख्याल से अगर मैं साथ इसको ओपन कर लूं तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और साथ साथ इसको अब हम कंपेयर करते हैं कि हमने कितना झूठ बोला। सबसे पहला देखें जी, हमने बताया वर्जन 4। देखें यहाँ वर्जन मैंने भी यही कहा, और देखें रियल ट्रैफिक से मैंने पकड़ा है, ये कोई किताबी बातें नहीं है। फिर उसके बाद हेडर लेंथ, इंटरनेट हेडर लेंथ, वो बता रहा है कि 5 वर्ड्स है, 20 बाइट्स का ये हेडर है, ठीक है जी। उसके बाद देखो कहते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विस, देखें DS, तो ये डिफरेंशिएटेड सर्विस के बारे में बता रहा है। फिर बता रहा है कि ECN यहाँ पे इंप्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है जी, नहीं है तो ना हो, ओके। उसके बाद कहते हैं टोटल लेंथ, इसका मतलब है कि 20 बाइट्स तो इसमें हेडर है, इसका मतलब इसमें 20 निकाल दो तो 1042 बाइट्स का पेलोड है, ठीक है। फिर इस पैकेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, 59942, ठीक है। फिर फ्लैग को यहाँ पे देख लो, तो फ्लैग में
पहला बिट जो है फ्रेगमेंट ऑफसेट 0 है, यानी कि इसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई। फिर टाइम टू लिव में 128 है। फिर प्रोटोकॉल के अंदर 17 है, जिसका मतलब है यूडीपी। देखिए यूडीपी। फिर उसके बाद चेकसम किया गया, लेकिन वो कहता है क्योंकि मैं एक सिमुलेशन टूल हूं, मैंने वैलिडेशन नहीं की, मेरे पास वैलिडेशन डिसेबल्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद जी चेकसम के बाद सोर्स आईपी देख लो। सोर्स आईपी में 192.168.43.179 चेक कर लो, ये क्या मेरा आईपी है? 43.179 एग्जैक्टली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो 43.179 और ये पैकेट मैंने इस डिवाइस की तरफ भेजा जिसका आईपी डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है 206.247.75.53। तो यहां हमें पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया कि हमारा डेस्टिनेशन कौन है। तो आपने देखा कि ये जो लेयर 3 का हेडर है, एग्जैक्टली अगर आप इस पैकेट पे आपको शक है, मैं कोई दूसरा पैकेट पकड़ लेता हूं, उसमें भी देख लो, उसी तरह लिखा हुआ है कि इसका एक एक फील्ड चेक कर लो। उसी तरह लिखा हुआ है वर्जन क्या है, लेंथ क्या है, डिफरेंशिएटेड सर्विस क्या है, टोटल लेंथ क्या है। देखिए वो पैकेट 1000 ज्यादा से 1060 समथिंग बाइट का था, ये 235 बाइट्स का है, वेरिएबल लेंथ है। आइडेंटिफिकेशन नंबर उसका कुछ और था, इसका 63,870 है। ये कहता है कि फ्रेगमेंट करने की इजाजत नहीं है, डोंट फ्रेगमेंट। ठीक है। फिर कहता है कि फ्रेगमेंट नहीं किया तो ऑफसेट 0। फिर कहता है टाइम टू लिव की वैल्यू 38 है। बताता है कि वो 17 था, यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब टीसीपी है। ये बताता है कि चेकसम नहीं किया क्योंकि चेकसम की इजाजत नहीं है। कहता है सोर्स का एड्रेस इसमें 170.114.15.96 है, जबकि डेस्टिनेशन मैं हूं 171, यानी ये पैकेट मेरी तरफ आया है 192.168.43.179। तो क्या जो कुछ मैंने ये पढ़ाया मैं इजीली कह सकता हूं, कहने में तो हर्ज नहीं है ना कि जी ये सारी थ्योरेटिकल बातें थी, ये कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं है? क्या ख्याल है, क्या मैं ये कह सकता हूं? नहीं कह सकता। तो यही बात जो आप लोग अपनी क्लासेस में पढ़ते हो और नॉर्मली बाहर निकल के कहते हो कि ये कोई अलफ लैला की कहानी है, तो उससे पता चलता है कि नहीं जी ये अलफ लैला की कहानी नहीं है, दिस इज ऑल रियलिटी, दिस इज ऑल रियलिटी। तो ये तो था जी हमारा आईपी वर्जन 4 का हेडर। अब इसी तरह हम आईपी वर्जन 6 के हेडर को भी पढ़ना चाहते हैं, हम आईपी वर्जन 6 का हेडर भी पढ़ना चाहते हैं। और ये मैं बताता चलूं कि वर्जन 4 और वर्जन 6 में, वर्जन 4 और वर्जन 6 में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो कि आपका वर्जन 4 का जो हेडर था वो 20 बाइट्स का था। यहां पे चेक कर लो तो ये 40 बाइट्स का है, ये यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है 40 बाइट्स का है। यानी ये लेंथ यहां से लेके यहां तक अगर आप मेजर करें, वो वेरिएबल था, मैंने कहा 5 वर्ड से लेकर 15 वर्ड तक हो सकता था, लेकिन ये फिक्स 40 बाइट्स का है, फिक्स 40 बाइट्स। यानी कि 10 वर्ड्स, हर वर्ड 4 बाइट्स का है ना, आपको नजर आ रहा है 10 वर्ड्स। ये है जी आपका IPv6 का हेडर। और मैं आपको इन दोनों को ये पढ़ाने के बाद दोनों को कंपेयर करना चाहूंगा कि वर्जन 4 और वर्जन 6 में क्या फर्क है, और क्या वहां पे 20 बाइट और यहाँ पे 40 बाइट्स, क्या ये बेहतर, क्या ये बुरा, हर चीज को हम देखेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन सी फील्ड्स 4 में है 6 में नहीं है, या 6 में है 4 में नहीं है, या दोनों में है। तो इसलिए आपने केयरफुली मेरी इन बातों को सुनना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली फील्ड एग्जैक्टली वही है वर्जन, जो कि 4 बिट से रिप्रेजेंट होगी। और अगर हम किसी IPv6 पैकेट को पकड़ लें तो यू विल फाइंड इट दैट यहां पे लिखा होगा 0110। जैसे अभी आपने देखा था कि 0100,
रियल नेटवर्क से पकड़ के ट्रैफिक दिखाई मैंने, कोई उसमें शक शुबे की जरूरत हरगिज नहीं। फिर उसके बाद क्योंकि इसका लेंथ फिक्स है, 40 बाइट्स फिक्स, 40 बाइट्स फिक्स है, तो क्या अगर 40 बाइट्स फिक्स है तो क्या जैन किस सेमेस्टर में हो? सर इंशाल्लाह अभी 6 में हो जाएंगे। अभी 6 में हो, जब हो गए, बल्कि 6 में हो गए, तो अगर एक चीज फिक्स है तो उसका लेंथ बताने की जरूरत है? नो सर, बाय डिफॉल्ट वो बस बाय पता होगी। डिफॉल्ट है। और अगर यही बात है कि ये फिक्स है, तो वो हमारे एक IEEE में एक्टिव हैं, क्या नाम है उनका, हसन प्रॉब्ली, जकी को पता होगा, जकी क्या नाम है, हमजा जो है सर, और क्या नाम है, हमजा जहांगीर, हमजा हमजा जहांगीर है, जहांगीर, हमजा ही है शायद। मुहर्रम है सर। मुहर्रम तो हमारी क्लास में नहीं है ना, हमारी क्लास में है वो, तो वो क्यों नहीं हमजा आ रहा मुझे जहांगीर है ये सर मेरा। हमजा है सर, हमजा। जी बिल्कुल बस हमजा चलो ही सर होगा, मेरा। तो वो क्यों नहीं आ रहा? आपका उनसे को कांटेक्ट है? सर वो टूर पे जा रहे हैं सर, जरा IEEE का टूर जा रहा है सर, उसकी अरेंजमेंट में लगे। लेकिन पढ़ाई तो नहीं छोड़ी जा सकती ना, पहले एग्जाम, फिर उसमें 3 वीक्स जाया कर दिए और उसके बाद टूर। आई डोंट नो, अंडरस्टैंड देन, एनीहाउ उनकी मर्जी, हमारा काम है सिर्फ काम करना। तो इसका मतलब लेंथ की जरूरत है, जैसे वहां पे हमारे हेडर लेंथ की जरूरत थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये 20 बाइट्स का है, ये 24 बाइट्स का है, ये 28 बाइट्स का है, ये 32 बाइट्स का, हमें नहीं पता था। लेकिन हमने देखा कि मोस्टली हमने अप्रोक्सीमेटली ऑल पैकेट्स में हेडर लेंथ 20 बाइट्स का ही था, लेकिन ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हेडर लेंथ छोड़ दिया गया। यहाँ पे एक अच्छा नाम दे दिया गया ट्रैफिक क्लास। ये वही काम करता है जो कि डिफरेंशिएटेड सर्विसेज फील्ड करता था। वहां पे थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही थी कि डिफरेंशिएटेड सर्विस क्या है। यहाँ पे बड़ा आसानी से पता चला ट्रैफिक क्लास, कि हमने अपनी ट्रैफिक को मुख्तलिफ क्लासेस में, जैसा भी हमने कहा, इट माइट बी वॉइस ओवर IP, another class, it might be web traffic, it might be FTP traffic, upload and download traffic, it might be the video on demand, it might be video streaming. So they are different classes, so you can use these 8 bits to classify the traffic. And again, जिस तरह के पहले मुझसे कायनात ने पूछा, अगर कायनात मेरे साथ अभी इस वक्त है, मुझे नहीं पता, तो ये वही काम है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस देना है, लेकिन क्या अगर अगले राउटर्स अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो हो जाएगा, नहीं करते, जो कि नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ राउटर्स नहीं करते, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए ये फील्ड मे और मे नॉट वाला ऑप्शन है। उसके बाद एक बहुत बड़ी फील्ड आपको नजर आ रही है, ये 8 बिट है, ये 4 बिट है, टोटल आपको पता है 32 बिट है, तो इसका मतलब ये है कि 20 बिट्स आपके पास फ्लो लेबल के लिए आ गए, 20 बिट्स, क्योंकि टोटल 32 है, नजर आ रहा है, 8 8 8 8 8 4 टाइम्स 32, तो ये 4 खा गया, ये 8 खा गया, तो टोटल रह गए बाकी 20। ये नई फील्ड है जो कि प्रीवियस में IPv4 में आपने नहीं देखी थी। बेसिकली अगर आप यहाँ पे 3 कलर देख रहे हो, ये कलर 3 मकसद वाइज दिए गए हैं। एक का कलर ब्लू है, एक मे आई कॉल इट लाइक मे बी ग्रीन और डार्क ग्रीन, जहां पे मेरा कर्सर है इस वक्त, और एक मे आई कॉल इट पर्पल, probably I don't know the exact name for this color, but we have the females with us जिनको कलर्स में ज्यादा महारत होती है, तो मे आई कॉल इट ग्रीन जहां पे अब मेरा कर्सर है, कैन आई कॉल इट डार्क ग्रीन जहां मैंने भी क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, या नहीं? आई एम रॉन्ग? वैसे ये टील कलर, क्या कहना चाहिए? टील कलर है ये, टील। ओके, और व्हाट आई शुड कॉल दिस कलर? पर्पल। पर्पल, तो दिस इज पर्पल। और ये 3 कलर का मकसद ये है कि ये जो पर्पल कलर है ये उसमें भी था, ये फील्ड उधर भी थी, जहां पे ग्रीन के आपको या पील कलर आप कह रहे हैं, अगर ये कलर है तो इनका नाम बदल दिया गया है। जैसे वहां पे इसका नाम डिफरेंशिएटेड सर्विस था, यहाँ पे इसका नाम ट्रैफिक क्लास कर दिया गया।
यहाँ पे वहां पे इसका नाम प्रोटोकॉल था, यहाँ पे इसका नेक्स्ट हेडर है। वहां पे इसका नाम टाइम टू लिव था, यहाँ पे हॉप लिमिट रख दिया गया। यहाँ तो देखें हर एक यहाँ पे पेलोड लेंथ है, वहां पे टोटल लेंथ था। तो यहाँ पे पेलोड लेंथ, क्योंकि यहाँ पे हेडर का लेंथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पेलोड का लेंथ चाहिए, इसलिए पेलोड लेंथ। तो बेसिकली ये वहां पे थे विद डिफरेंट नेम यहाँ आगे। और जहां पे ये ब्लू कलर आया है, दिस इज न्यू, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रीवियस IPv4। और ये भी आपको देखें पहले से सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस पहले में भी था, यानी IPv4 में भी था, IPv6 में भी है। यहां पे जो चीज नहीं है वो अगर आप देखें तो आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और फ्रेगमेंट ऑफसेट, क्योंकि IPv6 में फ्रेगमेंटेशन करने की इजाजत ही नहीं। तो जब नहीं है तो फिर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है, फिर TTR फ्लैग की जरूरत नहीं है, तो पूरा का पूरा 32 बिट का वर्ड उड़ा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे चेकसम भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब नए नेटवर्क्स में हम ये ज्यूम करते हैं कि वो इतने बेहतर हो गए हैं कि एरर आने का चांस बहुत ही मिनिमम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बहुत ही स्मॉल है। इसलिए जब एरर ने आना नहीं तो हम हर एक पैकेट को क्यों चेक करते रहेंगे और अपनी प्रोसेसिंग पावर जाया करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी तकरीबन हार्डली मेरे पास 1 मिनट या 2 मिनट है, कि आपको पता है कि जूम की वजह से हम 40 मिनट्स में क्लास खत्म करने की हमारी मजबूरी है। तो आपको ये एक आखिरी बात बता दूं कि फ्लो लेबल क्या है। सबसे पहले बता दूं कि फ्लो क्या है, फ्लो बता दूं तो फिर फ्लो लेबल बताना आसान हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 चीजें होती हैं, अभी 2 तो आपको समझ आ रही है, एक सोर्स आईपी, एक डेस्टिनेशन आईपी, DIP और SIP। इसके अलावा 2 चीजें और भी होती हैं, अभी उसको सिर्फ अपने ज़हन में डाल रहे हैं, अगली क्लासेस में क्लियर करूंगा। एक होता है सोर्स पोर्ट, SP और डेस्टिनेशन पोर्ट। जब ये 4 चीजें मिल जाती हैं तो इसको कहते हैं फ्लो। अगर इसमें कोई तब्दीली ना आए, यानी सोर्स लेट करें मैं हूं, डेस्टिनेशन लेट करें आप हैं, तो आपका और मेरा IP तब्दील नहीं हो रहा, हम 1000 पैकेट 10,000 पैकेट भेज रहे हैं, मेरी सोर्स पोर्ट और आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट भी तब्दील नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये एक फ्लो है। तो इस फ्लो को एक लेबल दे दिया गया जिसको कहते हैं फ्लो लेबल, जिसका मतलब होता है कि अगर आप चाहें तो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑन इंडिविजुअल फ्लोज। बात समझ आ रही? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपका IPv6 का हेडर। कल हम यहां से ही आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि जुमे का ये मतलब नहीं होगा कि छुट्टी कर लें। ऐसे भी आप लोग की वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही, सारे